afternoon, everyone. This is what we are meeting after a month exactly, I think now. So, this session, basically, my idea is to discuss how we are going to trade in this month of February, and then the second half of the session, I'm planning to discuss on how to approach budget day. So for the next coming month, if you guys remember, at the end of the last month, we thought this is an hanging man and it can go down, like what we discussed in the group. And this went down with a proper bearish candle and a close much below these 2 months low. Now, based on how the budget turns out, the direction either can reverse from here or it can continue its downward journey. But if you just look at it from the point of price action, it should continue its journey down because after such a big candle, it is very rare that we'll engulf it completely in the opposite direction. So until unless there is a major relief in budget, we'll trade with a negative bias in the coming month. That is one. If you look at it weekly, this is more or less a bullish piercing candle and an inside candle. So break of any level, the previous week's high or previous week's low will have a good swing, like upside and downside as well, because this is coinciding with the top side of the range when you come to daily and hourly, and this is now a strong bottom where we have made a sort of W and then pushed up. The market is only waiting for a trigger, and if budget provides a trigger, then we can see a good move in any one direction. That comes to weekly. If you see daily, now this is a bit concerning. We can see W here, but the problem is this tip. If this was an actual W and it meant a strong bottom, we would have seen at least somewhere close to movement till now prior to the budget itself. But that hasn't happened. And although the previous month FIS didn't roll over shorts, they did not waste any time in adding more shorts. So that also is a second indication saying market can continue its downward trend. Had they not added these new shorts that they have let expire in the previous month, we would have fairly assumed that they can now get to short covering if there is any slight positive announcement in the budget. But since they have again added shorts, I'll just show you where the shorts are at. Since they have again added shorts to somewhere close to 2 lakh crores of OI, there is this again a lingering problem that they will not allow the market to go up. Let me just see, it's 1.94 lakh OI. Previously, at the end of the last month, on the expiry day, it was 2.1. So from 2.1, they came all the way down to 1.7 and then back to 1.94. So they are not in the mood of letting the market go up, that is for sure. Now, coming to what will happen on the budget day, we'll just discuss about budget day. So I have sort of made a couple of screenshots. So these are all the last 10 budgets. Let's assume we'll consider last 10 budgets. Now, out of this, 2021 and 2020 you can safely remove because these are just during COVID and just after COVID budget. So you cannot assume this to be a standard market for budget day movement or volatility. If you remove this, all of them are pretty much close to 1% or below 1%. So 2025.2, we all know last year it was just the IV crush that killed everybody. Sellers made a lot of money. Same thing in 2024. We'll see 1:1 chart. So this chart is 2025 chart. It has opened somewhere here. Uh, it has moved around and then closed pretty much where it opened. So after this particular point, this down move and up move, it was just for IV crash. I remember this happening. IV crashed by about 30 percentage points. I mean, on the budget day, the IV was close to 47 or 48%, and then the IV crashed to 17 or 18, something like that. So a huge sort of an IV crash just post announcements. But it was very clear that they are not going to do anything. It was just a continuation of 2024 budget with no major push on either side. So one thing that is common across all the budgets is till this particular point, like 10:30, 11, 11:30.
market usually daily diaries around the same particular opening candle range. Like if you look at 5 minutes or first 15 minutes candle opening range until 10:30 or 11, it is very rare that a market breaks it on either direction. So only after 10:30 or 11, the market decides to go in a direction, and then based on how the speech ends, it will decide whether to uh, take rally onto one direction or come back to close in that same particular range. So first step for tomorrow, first of all, buyers tomorrow will have to be very careful because IV is at 45 right now, isn't it? So IV, let me just check. Okay, so you see this IV percentile is 91. It's very high, not even 45. It's percentile, but then absolute IV might be close to half of that. So it's very high. So until and unless market takes a direction, buyers don't even trade. I mean, budget is not the only day that we are supposed to trade. You just wait for a direction for the buyers. For sellers, we can either deploy a neutral strategy or a trend following spread based on the announcements that have come up. That we'll discuss live when it actually comes to this. So, 2 points: buyers be careful, let there be a trend, then only you trade. And the second thing is not before 10:30, 11 o'clock. So, two things. Now, if you see 2024, now this is 2024, started on this candle, 10:30, 11 o'clock, almost in the same range. I think this is 10:30 or 11 o'clock. Then it sort of broke out on one range, again came back down very sharply, and then closed pretty much near the opening. So nothing. Again, IV crash. 2023. Now this was a good year. Like you had a up move and then down move because 2023, I think we had this announcement on 7 lakhs tax rebate or something. Income tax rebate. Let me just see. 2023. Okay, yeah. So 2023, there was this announcement of 7 lakh tax rebate. So that is why the wild swings that you see on both directions. It went up initially on euphoria, and then once everybody realized that this is going to dent fiscal deficit, it brought down. So that is 2023. Now 2022 again opened here, sort of went down, and again closed where it opened. Nothing much, like 0.3, 0.4%. So most of the budgets, it is always meant to take your IV. Like sellers will win unless and unless there is a very major announcement. Now, when I say major announcements, there are 3 to 4 fields where you'll have to look at that can influence the market. One is obviously the taxation. Now, everybody, if you see all the market participants are unhappy with the long-term capital gains tax that has been brought up in the past 2, 3 years. And if there is any announcement saying like we intend to remove the gap between debt and equity taxation, or any announcement saying we are not bothered about FII flows, we will maintain the tax path and the fiscal consolidation that we are at. Something of this tune, market will take it very negatively. That is for sure. Because although most of us are not expecting any tax relief, but we are also not expecting any adverse comments or taxation hikes in this upcoming budget. So against this particular so-called expectation, if at all there is any hike in taxation or at least a comment on hiking taxation in the future, then the market will perceive this very negatively. And that with the falling rupee will act as a double whammy for our markets and there will be a lot of outflows. So that is one. The second thing is, if at all there is any major change in the way the government is targeting fiscal deficit in the upcoming years, that can be a big trigger. So the first trigger is taxation. Second trigger is this measures to control fiscal deficit. Now, if you have been following for the past 2 or 3 years, government is on a path to lower fiscal deficit. So, COVID it went up briefly to I think 6.5, 7%, and then the last year or so, government said we'll maintain it at 4.4%, and they were successful in doing that 4.4%. Now, this year, there are two things that market is already expecting. One is on the fiscal deficit term, they might bring it just a little bit down from 4.4 to 4.3 or 4.2.
And then there is this switch that is expected, that government will not monitor fixed fiscal deficit anymore. Instead, they will start monitoring debt to GDP. So those two are expected announcements, and those two are neutral announcements. But if, let's say, the government says we are delaying our path to fiscal prudence from 4.4 to 4.7 because we want to push growth and all, so that is again market might take it very badly because thinking growth is going to be affected, and that is why the government is predominantly taking a step against falling growth. So that might be negative. This is second. So first was taxation, second was fiscal deficit, and the third was subsidies. Now we all know most of our revenues are spent on subsidies. As of today, I think 34% of our entire country's revenue go to various central sponsored schemes and subsidies and all that. So if at all there is any subsidy that the government announces or a scheme that the government announces which has a significant revenue outlay, then that is a negative again on the budget. But since this is not an election year, or there is no major election also that is going to come up where BJP is ruling, so I don't think there will be any new scheme or there will be any new subsidy that will be given to the citizens. This is three. And the fourth one is growth related comments. If at all FM takes cue from economic survey saying we are going to grow very well or we are going to exceed the economic survey expectations, then that will be a positive trigger and market can rally a lot. Because right now, what market is factoring in is single digit company revenues with 1 or 1.5% of inflation. So if you went through the economic survey that was presented a couple of days back, the economic survey said India is expected to grow anywhere between 6.8 to 7.2%. Now, that is real GDP growth that our country is going to see. Now, how the nominal GDP growth is arrived at is that you add inflation to real GDP growth. Now, inflation of late, as per the official figures, is very low, like 1%, 0.8%, and all that. So, the real GDP and the nominal GDP are very close. Now, market returns over any long period of time, let's say 8 years, 10 years, they will always be close to GDP growth, 1 or 2 percentage points more. That's it. Because uh, informal economy is not included in the market. So, usually, if a country grows by 10 or 9%, the stock markets will go by 11, 12% or 12 to 13%. That's it, max. It cannot go more than that. It is not possible that the country is growing at 9% and stock market will grow at 20, 25%. That is not possible. So, in light of this, if our real nominal GDP growth is close to 8.5%, markets might grow by 10 or 10.5% year on year. That's it. So, if you calculate something like that, if you start from 2020 till 2027, we are already up. The CAGR is always already close to, I think, 15, 16%. So, looking at that particular formula, there is some more time for consolidation before market actually starts to boom. Now, whether this consolidation will be in the same range or about 500 to 600 points above all-time high or below all-time high is anybody's guess. But we cannot expect market to go like 30,000, 32,000 and all, not possible because the fundamentals are not backing it. That is 2022. So these are the four main factors what we should look out in the budgets before we opt for a swing or trade in a direction. This was 2021 budget. I think 2021 had a very specific announcement. What was that? Again, idea is like again it shot up after 11 o'clock. I think this was 10:30 or 11 o'clock, and then it shot up. So nothing before 10:30. You just wait and watch. Just see what the market is doing. Just see where the option OI is building, and then we'll plan once FM starts speeches or she is somewhere into the middle of the speech. Till that time, there is no point in trading because the swings can be very wild. So 2021, if you see what was the budget highlight. Uh, Nothing much. Just after COVID, yeah, I remember this. Okay, so after COVID, everybody was expecting budget to give some sort of subsidy like what US did. If you guys remember, after COVID, US said we will give every citizen about $2,000 to spend so that economy can boost up. But India said no, we are not going to give. They said instead we'll focus on growth. So market liked that India is not increasing its physical deficit and they are planning to grow their economy by not spending individually but spending on infrastructure. So market liked it and it shot up.
If you guys saw my podcast, this is the budget where I placed my order somewhere here and then I forgot, and then once I came out of the meeting, I exited somewhere close to here. This is that budget. Entered at like 25, 30,000 somewhere here, and then at the end of the day, that became 2 lakhs or 2.5 lakhs, something like that. This was my Turner budget. Prior to this, it was all come and go, come and go. Okay. So this is on budget. So two things, buyers wait for 1030, wait for a direction. And there is one other thing. In budgets, let's say market, let's discuss on the chart itself. So tomorrow, let's say the market opens and till 10, 10:15 or 10:30, let's say maximum, it forms a range. Now, since we are already in this big range of this particular level. So 25, 450, 460 on the upside, and then about 25,000 and 24,900 on the bottom side. We are actually pretty much close to the middle of the range. Now, what might happen is, let's say market opens and market will form a consolidation range like this. And then there is an announcement from FM, let's say regarding taxation, where she says, like in the coming years, we are planning to make debt taxation and equity taxation bring them onto the same level, which is a negative thing. Now, if this is a consolidation zone and market wants to go down and it wants to go down significantly, so what often they do is they'll take it up here, they'll sort of break this level momentarily and then bring it back down. Why? Because as of now, institutions have not made any positions. The OI is fairly light. Whatever shorts the FIIs are holding, they're all old shorts, nothing new. So if at all some big guy wants to make a position and take the market down, he will intentionally break either the upper range or lower range and then reverse it instantly so that he can capture all the stop losses here and then take it to the reverse. So if at all you remember this, if at all there is a small range that is formed till 10:30, 11 o'clock today, wait for a range break and either a reversal or a continuation with this sort of a what is that? Usual usual swing. So it breaks like this, and if it comes like this and immediately breaks here, you enter here with whatever money you have. Enter here with whatever money you have, like 10 to 15 points above stop loss. Or it doesn't do like this. If let's say it breaks down, it will definitely form some sort of swing like here, and then if it continues here, then enter here with this swing as stop loss. The thing is, tomorrow, if you don't enter with stop losses, your accounts will be blown away because 10 to 10:30 and 11, normally the size of the candle that you see is close to 100, 120 points. So if you are caught against a particular trend, you're gone. You see this candle, this is about 850 to 14,000. This is about 130, 140 points, 2021. Again, you see this candle, this is about 17,600 to 500, about 100 points. So you will have one candle for sure in this particular time period where it will try to hit stop losses. So don't get into that. If you see something of this sort, like a couple of big candles and then a continuation, then try to enter here or on top of this. But don't enter just seeing one big candle. No, that is always to hunt stop losses. Very few times it will happen that it has given a big candle and it is just going in that direction. No. Again, here you see this. This was a consolidation range. This till this point, this candle sort of broke and immediately it reversed. Now the problem here is I said we'll take an order here, but it did not close below this, so there is no point in jumping. Again, this is the second point. You don't take candles when it is midway. Allow the candle to close. Even if the candle is going 200 or 300 points away, don't chase. Let the candle close because you will have this wicks for sure. Any event day, you'll have candles with lot of wicks. Now, if you see till third or fourth minute of this candle, it will seem as if it is a solid candle, Morobozu and all that going on. But as soon as you enter at the last minute, it will reverse and it will again form a candle with wick. So wait at least till the candle close or 10 to 15 seconds prior candle close before you enter into a position. Tomorrow it will be a difficult day. And if you ask me if there is no clear trend, don't trade because most of the people's losses occur on event days because everybody is excited to trade, everybody is excited to capture the big trade which will change their trading journey, but most of us end up losing. It is not easy to trade on event days. So that was it for me from budget point of view. If you guys have any questions, then we can take that.
एनीबडी? Nobody? No questions? Then हेलो सर। yeah. मुझे तो लग रहा है मतलब इतना मूवमेंट का कुछ चांसेस है ही नहीं कल। ये हाँ, थोड़ा हाइप ही हो रहा है ज्यादा। यस, हाइप ही हो रहा है, यस। बट हम्म। होगा तो भी 10:30 11 के पहले कुछ नहीं होगा, तो आप लोग इनिशियल प्राइस एक्शन या फॉर्मेशन देख के ट्रेड करना बहुत रिस्की होगा। यस यस। Until and बिकॉज unless FM says something very good or very bad, I don't think we are going to change. यस यस। बिकॉज कल का हमारा जो ट्रेड था वो डाउन साइड वाला, उसने तो मतलब गैप डाउन देके वो ये कर दिया। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि ये रेंज के बीच में ही थोड़ा सा टाइम पास टाइम कर। पास करेगा। नहीं, बट बिकॉज एनी हाउ अगर हाँ हाँ। द अदर थिंग इज लाइक डब्ल्यू बना के यूजुअली टाइम पास नहीं करता है मार्केट। लाइक अगर ये सही में डब्ल्यू बना है और अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको टाइम पास नहीं करता है, वो तुरंत चला जाता है। अगर ये जोन में टाइम पास कर रहा है तो वो नीचे आने के लिए ही है, इट्स नॉट प्लानिंग टू गो अप। यस सर। आप लोग बिकॉज कैसा है कि पुराने टाइम में भी आप देख लीजिए, वेन एवर इट फॉर्म्स ए डब्ल्यू, लाइक दिस वॉज अ गैप डाउन डब्ल्यू बट स्टिल इट इज ए डब्ल्यू, तुरंत उठ जाता है। It doesn't wait around or form a consolidation pattern or something like that. No, it will not give you time to adjust. यस सर। ये वाला देखिए, ये आया हायर डब्ल्यू एंड चला गया, वेट ही नहीं किया। तो अगर वो वेट कर रहा है रेंज में, देन इट इज टू ब्रेक डाउन फॉर श्योर। यहाँ पे भी है, मुझे ये तो आया हायर जैसे डब्ल्यू। वो बजट का कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा के लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा लग रहा है, क्योंकि देर इज वेरी पॉजिटिव न्यूज इन द मार्केट, क्योंकि ईयू का भी डील क्रैक हो गया है एंड ट्रम्प भी आजकल थोड़ा चुपी है। हम्म। तो बट मतलब ईयू का, आई मीन, इन्होंने हाइप ऐसा कर रखा है, बट देन एक्चुअली इफ यू सी, ईयू सीम्स टू बी नेगेटिव फॉर अस। टेक्सटाइल इन को छोड़ के, हाँ, टेक्सटाइल को हाँ छोड़ के टेक्सटाइल तो यस। देर इज नो अदर इंडस्ट्री दैट वी कैन हैव इनरोड्स इन ईयू विथ। उल्टा उनको हम लोगों ने हाई मार्जिन, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को मार्केट दे दिया, क्योंकि यू गॉट अ वेरी बिग मार्केट इन अस। हमें यस। उनके यहाँ कितना मिलेगा, आई डाउट। हमने तो इनडायरेक्टली उनको थोड़ा व्हीकल का मार्केट थोड़ा ज्यादा ही ओपन कर दिया है। व्हीकल का मार्केट एंड देन एविएशन का मार्केट। यस यस, एविएशन में भी आ रहा है हाँ, हाँ। एंड देन आई थिंक समथिंग एल्स आल्सो, आई रिमेम्बर। एक की फायदा हो सकता है कि ये लोगों ने इमिग्रेशन रूल्स थोड़े रिलैक्स कर दिए फॉर इंडियंस टू गो एंड वर्क इन ईयू। तो दैट कैन बी पॉजिटिव, प्रोवाइडेड वो लोग एआई अडॉप्ट करके वो दिमाग खराब ना कर या मतलब पॉजिटिव का मतलब ईयू का पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ, ईयू का खुद का कुछ पॉजिटिव होना हो, बट इट इज अफेक्टिंग ट्रम्प ना दे। इनडायरेक्टली, यस, कि यस, उसको लग रहा है कि अरे मेरे को छोड़ के जा रहे हैं सब लोग। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ का थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो लेगा वो। भले यस, ही हम लोगों ने ऑयल कम कर दिया हो, खरीदना नहीं कर दिया हो, इट डजेंट मैटर ना, क्योंकि उसको अभी थोड़ा इफेक्ट होने लग गया है कि हाँ यस, मतलब मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ। यस। तो आई यूजुअल तो भी थिंक वो मेरे ख्याल थोड़ा से कल या आज एक स्टेटमेंट था कि एकदम क्लोज है इंडिया यूएस डील, बस एक बार मिलना बाकी है, तो कुछ स्टेटमेंट था। तो अगर वो हम्म, है तो देख लेते हैं। वो है तो फिर वो भी। हाँ, ये यस so moving towards closure explains how and all that. So अगर ये बोल रहा है क्लोजर है तो शायद आ जाए 1 2 हफ्ते में। यस यस। बट अगेन विल हैव अभी टू तो सी क्या होने वाला है उसमें। यस। पता नहीं, मुझे तो कल का थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है। हम्म। जो भी हो, वो आईवी क्रश तो दबा के होगा पक्का आफ्टर 11 यस 11:30। तो इफ एट ऑल देर इज नथिंग मेजर इन द बजट, अगर आप लोग स्ट्रैडल लेते हो तो स्ट्रैडल लेके बैठ जाओ आफ्टर 11 11:30, बहुत बुरा क्रैश होता है अभी। हम्म। वो एंड आईवी का एटीएम। चार्ट यूज करते हो क्या सर आप, मतलब सेंसिबल का जो है वो, नहीं, इतना मतलब ज्यादा जैसे नहीं, मैं सिर्फ ये एटीएम ही देखते रहता हूँ। अच्छा
नहीं मतलब कैसा है कि मैंने इतना ज्यादा आईवी का ये नहीं किया है, थोड़ा बहुत जहां तक मुझे याद पढ़ा है मैंने। आई जस्ट लुक फॉर कि वो रेंज में है या नहीं। जैसे आप मतलब एनालिस में आप एक बार देखो ना कि आईवी का एक चार्ट है स्पेशली। ये वाला नहीं ना। अ, नहीं ये वाला तो नहीं देखता हूँ मैं। एक बार आप एनालिस पे क्लिक करिए सर। हाँ ये ऑर्डर्स में आईवी चार्ट है ना, उसमें जैसे कि अभी देख पा रहे हो नीचे रेंज में था आईवी, अभी हम्म। मतलब टोटली ये ऊपर कर चला दिया गया। है, शूट अप कर हम्म। दिया। हाँ हम्म। तो ये अभी तो क्रश होगा दिस इज, वापस ये रेंज तक। हाँ तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर सेलर्स, मतलब कि आईवी अगर हाई है तो हम लोग बेचेंगे, तो हम लोगों को प्रीमियम हाई प्राइस पे मिल रहा है तो खाने मिलेगा था। हम्म। तो ये बस देखता हूँ मैं। तो आप इसी की बात कर रहे थे क्या मतलब? यस यस। अच्छा ओके। एटीएम स्टाडल अभी तो फिलहाल है 390, तो वो 390 क्रश हो के मेरे ख्याल से 200 के आसपास आ जाएगा। तो वन हम्म। एटी 190 पॉइंट्स है कैप्चर करने के लिए एटीएम स्टाडल में। क्योंकि कल वाले सेशन के बाद एक और मंडे का ही सेशन बचा है बिफोर एक्सपायरी। यस यस ऑब्वियसली। Yeah, and usually one day prior to expiry, ATMs are like close to 180, 190, and on the day of expiry, 130, 140 के आसपास होता है। तो 100, 100, 100, 150 पॉइंट तो है कैप्चर करने के लिए ऑन स्ट्रैडल डीके। यस सर यस। सर क्या आईवी क्रश मुझे भी फायदा देगा इसमें? मैंने जो बुल साइड के लिए जो शॉर्ट कर रखा है। अगर आपने स्प्रेड बना रखा है तो देगा सब फायदा। नहीं, स्प्रेड मेरा सिंपल यही है कि मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है और उसे हेज कर रखा पुट से ही। तो बुल और पुट। दोनों के बीच का गैप कितना है सर दोनों के बीच का गैप, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ एक बार। सर? हाँ, तो आपने बेसिकली वर्टिकल स्प्रेड ही बना रखा है, बट वो दोनों के स्ट्राइक प्राइस में गैप अगर ज्यादा है तो आपको फायदा होगा। अगर ज्यादा नहीं है, आसपास में ही है, तो फायदा नहीं होगा। एक मिनट में बता देता हूँ, चेक करता हूँ मैं। अच्छा, गैप का होना ज्यादा जरूरी है उसमें। यस, क्योंकि फिर आपको वो डेल्टा फर्क पड़ता है। ओके। एंड अगर आप ओए देखेंगे तो बहुत लाइट है, कोई भी ऑप्शन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, सब लाखों में ही है। 26,000 1 करोड़ से ज्यादा है, जो बहुत ही दूर है, तो इसको कंसिडर करके कोई फायदा नहीं। तो सर मैं, हाँ सर, तो 25,350 पुट को मैंने शॉर्ट कर रखा है, 2550 पुट से मैंने हैच कर रखा है, बाय कर रखा है। हाँ सर, आपने 300 ही ले रखा है, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा सर। ओके, यानी बस यही है कि अगर मेरे डायरेक्शन में ही रहता है मार्केट, नीचे भी नहीं आता ऊपर भी नहीं आता, तो बाय द एंड ऑफ द वीकली उसमें मुझे मिल जाएगा फायदा, बस हाँ यही। यस यस। कल के दिन वो आईबी क्रश की वजह से ज्यादा आपको फायदा होगा नहीं होगा यानी मुझे? नहीं। नहीं नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। यूजुअली नॉर्मल डेज पे 25 350 तो अभी एटीएम हो गया अभी के यस। मार्केट के हिसाब से। तो एटीएम 185 है, and 2 दिन पहले नॉर्मल डेज में वो 110 120 के आसपास रहता है। तो सिक्सटी यस। फाइव पॉइंट्स का एक्सेसिव आईवी की वजह से स्प्रेड जा ये 65 पॉइंट्स है। अगर आप 25 50 में भी देखोगे, अभी 80 रुपीज है, 79.75। यस सर। यूजुअली ये 20 या 15 से 20 के रेंज में रहता है, अगर इसी बिना इवेंट के अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे भी आपको 50 पॉइंट का स्प्रेड दिख रहा है, तो बचा सिर्फ आपका 10 पॉइंट का ही फर्क है। तो अगर क्रश होगा तो भी आपको वो 10 या 8 9 या 10 पॉइंट ही मिलेगी, ओके सर। ज्यादा मिलेगा नहीं। बजट से पहले मैंने इतना लाइट ऑप्शन चेन बहुत कम ही देखा है, यूजुअली भरा होता है। देखते हैं अभी ये एक साइड भगाने के लिए है या किस लिए, देखते थोड़ा इस बार सस्ते भी लग रहे हैं सर प्रीमियम, मतलब पता नहीं। हैं। हाँ सर, सस्ते तो है, क्योंकि अपना विक्स अभी भी तो 15 पे ही है। कितना है विक्स? 13 समथिंग। हाँ 13 14, वो बहुत कम है। अगर आप पिछले बजट के टाइम पे देखोगे, विक्स में देखते हैं पिछला बजट, फेब, किधर गया? आप पिछले टाइम पे देखो, 18 था, 18 19 था। हम्म। फर्स्ट फेब को तभी थोड़ा थोड़ा बहुत क्रैश हुआ, बट 16 था, 16 15 16। यूजुअली बजट टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, इस बार बहुत कम है। क्योंकि वो 9 10 पे जब हम लोग चले गए ना, तो सबका खत्म हो गया ये। 24 में भी 16 था, थक 24। गए सर लोग सब ऑप्शन। हाँ, 23 में तो आप देखिए कितना था, बाप रे बाप, 19 20 था।
तो नॉर्मली 16 to 18 होता है यूजुअल। ये आजकल तो जब से वो सेबी ने टांग अड़ाया पूरा खत्म ही हो गया मार्केट। नहीं, किसी को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है शायद से मार्केट से अभी। यस। हो गया सबका खत्म यस। कि बजट में भी कुछ नहीं होने वाला है। एंड अब अपसाइड भी जाएगा तो इतने इजीली नहीं जाएगा सर, क्योंकि मतलब बहुत ही एफआई तो बैठे ज्यादा हैं। हर्डल्स है। हाँ, ईएमएस वगैरह। एफआईएस भी तो बैठे ही हैं मतलब। हाँ, एफआईएस भी बैठे हैं। परसों वाला जो दिन था, ये वाला कैंडल जब बना था, पूरा विक लेके हम्म। ऊपर ऊपर जाके क्लोज किया, मुझे लगा एफआई का शॉर्ट कवरिंग आया होगा। मैंने आपने हम्म। चैट चैट में भी मैंने पोस्ट किया था कि एफआई का शॉर्ट कवरिंग है। बट हाँ, एट द ये एंड सही ऑफ द बोल। डे उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, कवर नहीं किए हैं। तो दैट वाज अ सरप्राइज। ऐसे पॉजिटिव कैंडल्स के बाद भी अगर वो लोग शॉर्ट नहीं कवर नहीं कर रहे तो अभी नहीं करेंगे वो लोग, अनटिल अनलेस अपना सीतारामन कुछ कर दे। हम्म। एक और सीतारामन कैंडल आना चाहिए, वो 4% वाला। सर मेरा बिगनर्स डाउट है कि या ये इतना शॉर्ट्स बना के रखे कि उनको फायदा क्या हो रहा है इस चीज से, तो मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, मोस्टली ऊपर ही जाता है रिसेंट टाइम में तो। नहीं सर, वो शॉर्ट्स एक्चुअली यहाँ से कमाने के लिए नहीं बना रहे, वो शॉर्ट्स उनका सेलिंग का हेज है। अगर समझ लीजिए डीएएस ने बाइंग छोड़ दिया या फिर हम लोगों ने एमटीएफ में से बाइंग छोड़ दिया, तो अगर 2-2.5 हजार भी वो लोग रोज बेचेंगे तो मार्केट बहुत बुरा गिरेगा। तो उसके अगेंस्ट हेज है उनका। मतलब कम, अगर समझ लीजिए उन्होंने एक दिन आके 7,000 करोड़ बेच दिया और मार्केट सिर्फ 2% टूटा, लेकिन 25,000 या 24,900 जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स में वो लोगों ने 7,000 करोड़ बेचा, और मार्जिन कॉल्स की वजह से समझ लीजिए 3-4% एक ही दिन में टूट गया मार्केट। तो हम्म। उस केस में उनका जो नोशनल लॉस है, मतलब अगर आप रिलायंस को ही देखोगे, एट स्टार्टिंग ऑफ द डे रिलायंस समझ लीजिए उन्होंने बेचा 1400 पे, लेकिन क्योंकि मार्केट 4% गिर गया तो वो 1400 से सीधा 1300 या 1250 के आसपास आ जाएगा, तो वो लोग 1400 पे नहीं बेच पाएंगे ना दोबारा, जब तक वो हाँ नहीं। रिकवर नहीं होगा। हम्म। तो ये जो तो नोशनल बेसिकली ये लॉस। अपने जिधर ज्यादा खरीदना हो तो ये कॉल बाय करके रखेंगे और बेचना हो तो मतलब शॉर्ट हाँ। कर रखेंगे। यस। यस। वो उनको एफएनओ में, मतलब एफएनओ के वजह से उनको मार्केट से प्रॉफिट नहीं लेना है, उनको जो परसीव्ड नोशनल लॉस है उनके खरीदने बेचने से जो प्राइस मूव हो रहा है, वो वाला हम्म। नोशनल लॉस या नोशनल प्रॉफिट ये लोग एफएनओ के थ्रू कवर करना चाहते हैं। ओके, तो यदि वो शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं मतलब वो आगे और तगड़ा बेचने वाले हैं। हाँ, एक वो ओके है, ओके एंड सर। दूसरा ये लोग प्रीमियम तो खाते ही है ना, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी हमेशा 250-300 पॉइंट ऊपर दिखाता है, क्योंकि वो 250-300 पॉइंट वो महीने का प्रीमियम है ऑफ फ्यूचर्स कंपेयर टू द स्पॉट। अगर पूरा 1-1.5 महीने बाद भी मार्केट वो इसी लेवल पे आके फिर बंद हो गया, तो फिर भी वो लोगों को 300 पॉइंट तो प्रीमियम मिल ही रहा है फ्यूचर्स पे। हाँ सही बात। और दूसरा डाउट था ये कैंडल से रिलेटेड, जैसे फ्राइडे को था वो गैप डाउन हुआ हम्म। और फिर बिल्कुल डे हाई के अराउंड जाके क्लोज हुआ है, तो इसको पॉजिटिव कैंडल तरह लेंगे या नेगेटिव कैंडल देंगे लेंगे नहीं एज सर, इन नॉर्मल डेज? इतने छोटे बॉडी साइज या कैंडल साइज में पॉजिटिव नेगेटिव देखना मुश्किल है, अच्छा ओके। क्योंकि दोनों साइड विक्स है हल्के हल्के। ऐसा भी नहीं हाँ कि हाँ। पूरा सॉलिड ग्रीन बॉडी है या सॉलिड रेड बॉडी है, तो सिर्फ ये कैंडल को देख के परसीव करना डिसीजन मुश्किल है। ओके, एंड जब लेकिन यदि तक ये, गैप गैप डाउन हुआ और बहुत ऊपर जाके क्लोज हुआ तो फिर वो पॉजिटिव है सर? हाँ, अगर गैप डाउन होता और समझ लीजिए 25-550 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता, वो पॉजिटिव है। जैसे ये लास्ट ईयर हुआ था ना, जहां से भाग गए थे हम लोग बहुत बुरी तरह से। हाँ हाँ, अप्रैल में। हाँ, ये देखिए, यहाँ यहाँ क्लोज हुए थे हम लोग 22,900 के आसपास, और गैप डाउन खुला 21,800, बेसिकली 1100 पॉइंट गैप डाउन। हम्म। और खुल के सॉलिड कैंडल बनाया। ये पक्का डायरेक्शन है, क्योंकि नीचे वीक था ही नहीं, ऊपर भले ही हल्का सा वीक हो, बट मेजोरिटी आप बॉडी से देखिए। ऐसे जब ओके मिलते हैं ना, आप पकड़ के बैठ जाओ, बहुत बुरे प्रॉफिट्स मिलते हैं ऐसे ऐसे जब मिलता है तो। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आप कह रहे थे कि इस थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग हुई थी सर। नहीं नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शॉर्ट कवरिंग होगा ये कैंडल को देख के, कि इतना नीचे से ऊपर खींच के लेके गए, दैट टू एट ए पेस। यूजुअली तभी लेकिन होता है जब, ब्रेकअप हुआ था ओआई, जब मैं देख रहा हूँ ना अपने ओआई हाँ, चार्ट में। वो ऐड हुआ था, वही मैं बोल रहा हूँ। यस। मुझे लगा कि होगा ये शॉर्ट कवरिंग, तो मैंने ग्रुप में भी डाला था कि इतने बड़े बड़े कैंडल्स और वन साइडेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो शायद शॉर्ट कवरिंग है FA का, बट एंड ऑफ द डे आई सॉ दे एडेड 8,000 और समथिंग मोर। इस दिन मैंने नहीं लिया था ट्रेड, मैंने वेट करा था कि इसे वही मेरे लेवल पे आना चाहिए, तो कल ही मिला मेरे लेवल पे ये। हम्म। मॉर्निंग में ही क्या कहते हैं, ये एकदम बहुत बड़ा गैप डाउन था, तो जैसे ही आया मैंने बाई साइड पे के लिए बना दी पोजीशन अपनी। वो गैप डाउन भी इसीलिए था क्योंकि इन्होंने 7-8 हजार करोड़ का तो
स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स ही बेचे थे, तो वो गैप डाउन हुआ उतना। ये इससे याद आया सर मुझे, कल यानी धन के उससे पता चला, इन्हें हमेशा पता चलता रहता है कि बाई करे इन्होंने इस बार। शॉर्ट्स? नहीं शॉर्ट्स नहीं, मतलब यानी एफआईआईज ने बाई करे हैं, ये बता रहा था। मतलब क्या दो बाई किया सर? एफआईआईज बाई करते हैं ना सर, एफआई और डीआई बाई और सेल चलता रहता है इनका नहीं, हर वही मतलब कौन सा सेगमेंट में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, ऑप्शंस में, कौन सा सेगमेंट में? वही चेक कर रहा हूँ सर क्योंकि उन्होंने नॉर्मली। स्टॉक्स बाई किया है फ्राइडे को, ओके थर्सडे को सेल किया है, ओके फ्राइडे को ये बाई किया है। बट वो बाई के सामने आप ये देखिए ना, स्टॉक फ्यूचर्स कितना बेचा है, फ्यूचर्स दबा के बेच रहे हैं लोग। पहले ओ तो फ्यूचर्स खरीद के रखते थे ये लोग, अभी फ्यूचर्स भी नहीं खरीद रहे। जी और ये इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया है इन्होंने। ओके। कैश में बाय किया है सर तो ने फिर भी। उन्हें ये स्टॉक्स डायरेक्ट इक्विटी बाई किया है 2002 करोड़ का, 2200 करोड़ का। हाँ सर यही करा था। स्टॉक्स नहीं, बट ये अकेला आजकल कुछ मायने नहीं रखता है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सही में खरीदना होगा तो शॉर्ट्स क्यों ऐड कर रहे हो लोग? यस सर। जब तक ये बहुत फास्ट तरीके से कवर नहीं होता है, ओआई कम नहीं होता है, मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा तो भी रैली कभी ना कभी तो फुस हो जाएगा। हाँ सर ये है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक मुझे एटलीस्ट ये वाला रेंज तोड़ेंगे भी, फिर भी ये वाला रेंज से रिजेक्शन ले जाएंगे, 25,900 2800 पक्का है। तो जब तक फॉर एफआईआईस लोगों के एसआईपीस बंद ना कर देना, मार्केट नहीं जाने वाला कहीं पे, वो आप पक्का है। ओके। बट सर इन लोगों की यानी पेन कैपेसिटी कितनी होती होगी, मतलब यानी जैसे हमारे भी एसएल लगते हैं तो उनके भी एसएल लगते होंगे, ऐसा नहीं कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके कभी एसएल नहीं लगते होंगे। लगते हैं ना सर, ओके क्योंकि लगते हैं, ये बट कहना। उनके सब मोस्टली पोजीशंस कवर्ड पोजीशन होते हैं, हमारे जैसे नेकेड नहीं होते। कवर्ड मतलब बैक्ड बाय इक्विटी, बैक्ड बाय इक्विटी। तो ओके अगर उनको लॉस हुआ तो भी वो लोग इक्विटी बेच के वो लॉस को रफा दफा कर लेते हैं। हम ओके लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, हम लोग सीधा एफएनओ में ही काम करें। तो अपना लॉस है मतलब अपना कैपिटल गया, उनका लॉस है तो वो लोग इक्विटी बेच के थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक कर लेते अच्छा, अगर ऑप्शन है फ्यूचर में गवाया तो स्टॉक्स में वो रिकवर कर लेंगे, हैं। हाँ, मैंने एक तरह से इंश्योरेंस ही कर लिया उन्होंने। यस, बड़े लोग ऐसे करते हैं। मोस्टली बड़े लोग कवर्ड कॉल्स ही लेते हैं, कवर्ड कॉल्स या कवर्ड पुट्स। इसलिए जब वो अपना सेबी बोलता है ना कि रिटेलर्स ने 1 लाख करोड़ लॉस किया है, 90,000 करोड़ लॉस किया है, अगर आप सेबी स्प्लिट देगा कि कवर्ड कॉल्स में कितना था, नेकेड में कितना था, तो बहुत स्क्यू हो जाएगा वो फिगर। कवर्ड ओके कॉल्स वो लोग करते हैं जो बहुत ही वेल्दी है, फैमिली ऑफिसेस हो गए, अल्ट्रा एचएनएस हो गए, वो सब कवर्ड कॉल्स लेते हैं, और वो 100 करोड़ के कवर्ड कॉल्स लेते हैं। ओके। तो यानी वो स्टॉक से यानी इंश्योरेंस की तरह बना लेते हैं अपना यस, एक। यस। अभी परसों इनको जो मैंने बताया था, अनूप जी के जी ऑप्शंस वेस्ट होने वाले थे, तो उन्होंने तो कवर भी नहीं कर रखा है, और नैस्डैक अभी फुल मूड में है नीचे आने के। ये देखिए हाँ नैस्डैक, ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेलियर किया है। तो यस। जैसे ही ये वाला लेवल गया तो खत्म, नैस्डैक बहुत नीचे आएगा। डबल टॉप भी बनाया है मस्त, तो अच्छा अच्छा, खासा तो इसके नीचे आने का मतलब नहीं हमारे मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, नीचे ही। पड़ेगा। और सर ये जो अभी सिल्वर और गोल्ड का चल रहा है जो इतना 15-15 20-20% नीचे है, तो ये हमारे मार्केट पर भी इफेक्ट देगा। देगा ना सर। अभी जैसे सोमू ने जो डाला था एक अल्ट्रा एचएनए का स्नैपशॉट की 4.5 करोड़ लूज किया है। अभी अगर यस वो सर। बंदे के पास मार्जिन नहीं है दोबारा करने के लिए, तो वो या तो इक्विटी को बेचेगा या तो फ्रेश कैपिटल लेके आएगा। इक्विटी को बेचेगा तो मार्केट्स गिरेंगे। बड़े लोग का तो फ्रेश कैपिटल ऐसे लिक्विड तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ही होगा। जी तो ऐसे मेजर लिक्विडेशन इवेंट्स में टेम्पररी ही सही, बट सब एसेट क्लास में पड़ता है इम्पैक्ट, क्योंकि मार्जिन्स और पोर्टफोलियो रीएलोकेट करके स्टेबलाइज करना होता है सब बड़े लोगों को। जी। तो ये भी इफेक्ट करेगा हमारे मार्केट पे। यस, ओके सर। ये तो हेलो अभी सर। जो गया है बहुत नीचे, बाकी है आना इसको। हाँ सर। हम बोल रहे थे कि जैसे ये इस क्वार्टर के अर्निंग्स आ रहे हैं, निफ्टी में और ओवरऑल ग्रोथ ही हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी का निफ्टी कहाँ जा सकता है, लाइक अगले 2-3 महीने टाइप्स? सर
अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये 2018-17 का मार्केट होता तो निफ्टी अभी तक 18-19 हजार पे आ चुका होता, बट क्योंकि एसआईपी हर महीने 30-30 35-35 हजार करोड़ आ रहे हैं, वो गिरने नहीं दे रहे बेसिकली। तो हम लोग यही साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहते रहेंगे और कहीं नहीं जा पाएंगे ना। एफआईएस ना ऊपर बढ़ने देंगे, डीआईएस ना नीचे गिरने देंगे। हाँ, तो मतलब इस सिचुएशन में पोजिशनल आयरन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर है ना, मतलब हाँ, किसी को पोजिशनल यस, करना है तो। पक्का, यस यस, दैट विल बी द बेस्ट। अगर हम्म। बहुत कैपिटल है एंड आपको 12-15-16% रिटर्न से आप खुश हो, तो दिसंबर या अक्टूबर का आयरन कॉन्डोस बेस्ट है। ओके सर। क्योंकि यूजुअली हर साल यही होता है कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा टर्बुलेंस होता है, गिरना होता है तो फर्स्ट क्वार्टर में गिर जाता है, सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर से स्टेबल होकर रिवर्स मारना शुरू होता है। सर ये मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में अब सिर्फ अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड है वही ला सकते हैं बेसिकली। सर वो अगर होगा उसी तो भी मेरे को शॉर्ट टर्म ही लग रहा है सर। वो क्या $30 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के लिए क्या बढ़ेगा अपना मार्केट? हमारा खुद के हिसाब से हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन है, एंड $34 बिलियन इज द एक्सपोर्ट एक्सपोजर टू यूएस, जिस पे टैरिफ लग रहा है। अगर आप फार्मा वार्मा सब हटा दें, फार्मा पे तो वो लोगों ने तो ऐसे ही टैरिफ नहीं लगाया है। तो जो एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहा है वो $34 बिलियन है, मतलब कितना 0.8% जीडीपी है, एंड उसके लिए इतना हो हल्ला कर रहे हैं हम लोग। तो सर ये पॉजिटिव न्यूज फिर क्या होगी मार्केट के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके हिसाब से जो अर्निंग्स लॉन्ग अपग्रेड सर, अर्निंग्स अपग्रेड, और कुछ नहीं होता है मार्केट में। जब तक अर्निंग्स टर्म। अपग्रेड्स नहीं होंगे नहीं होगा। ओके सर। आप ये सोचिए ना, एलजी और एक और कोरियन ब्रांड था ना, Hyundai, वो उनके मार्केट से फंड क्यों नहीं उठाया उन्होंने, इंडियन मार्केट से फंड क्यों उठाया? क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल है फंड। एलजी, ओके कोरियन मार्केट में जो एलजी लिस्टेड है वहां पे 6 पीई पे ट्रेड कर रहा है। जी। और अपना पीई कितना है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने यहाँ पे पीई देखिए 45, मतलब मजाक है। हम्म। तभी वो लोग यहाँ पे आके पैसा बेच रहे हैं, मतलब शेयर बेच के पैसा उठा रहे हैं। अगर यही फंड रेजिंग उनको कोरिया में करना पड़ता तो यहाँ से 9 गुना ज्यादा स्टॉक बेचना पड़ता उनको, 8-9 गुना ज्यादा स्टॉक। ओके। तो बेसिकली पॉजिटिव एक या तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर प्रॉपरली बदले यस और फिर पॉजिटिव क्या कहते हैं ये प्रॉफिट ये सब आए इसमें यस, ईयरली अर्निंग्स ग्रोथ के बिना नहीं समझेंगे वाला, तब तक ही चलेगा ना अर्निंग्स ग्रोथ के बिना। हर स्टॉक 40-50 पीई है। आप जी कोई भी सर। स्टॉक देख लो, सब 40-50 पीई है। यस मिड सर। कैप स्मॉल कैप में तो भयंकर है। ये आप जियो फाइनेंस देख लो, सबके पास पड़ा है जियो फाइनेंस, 100 पीई है। जी। या तो फिर ये सही रेट पर आए सारे पहले जो यस पैग रेशियो या पी रेशियो प्रॉपर हो जाए, पैग यस रेशियो 1 से नीचे हो जाए यस सारे, यस तब जाकर क्या कहते हैं वो बाइंग के कहते हैं यहाँ पर अच्छा भाव होगा तब बाहर वाले आएंगे इन्वेस्ट यस करने के लिए। यस। ठीक है चलो। जब तक वो नहीं होगा सर, कोई भी मूव स्विंग ट्रेडिंग के लायक ही होगा, वो बाई एंड फॉरगेट वाला मूव नहीं होगा। या तो कोई सिस्टमिक करेक्शन चाहिए, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड जैसा क्रैश जहाँ पे 40-50% करेक्ट हो गया हो और पीईजी सब 1 के आसपास आ जाए, या जी। फिर ऐसे ही स्विंग में चलता रहेगा, ऊपर हल्का नीचे हल्का ऊपर हल्का नीचे ऊपर। तो जब तक ये धीरे धीरे करके ये पी को करेक्शन करेगा, जब वो एंड कंसल्ट, यस करेक्शन आ जाएगा यस टाइमली, तब उसके बाद ही यानी ऊपर जाने का है। यस। ओके सर। इसलिए मेरा मन नहीं करता है कि ये लेवल्स पे भी मैं परसों सोच रहा था कि मेरा डेट वाला एलोकेशन हटा के इक्विटी में डाल दे, बट पीवी देख के मेरे को कुछ ढंग से लग नहीं रहा था। इस क्वार्टर के भी सब तो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ ही है, 8% 7%। और सर बाय द वे से एक चीज पूछना था, आप डायरेक्टली क्या अपने कैश के साथ ही करते हैं या आपने कोई म्यूचुअल फंड या कुछ म्यूचुअल फंड सर, गवर्नमेंट म्यूचुअल सिक्योरिटी? डेट डेट मेरे सब गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है मोस्टली। अच्छा जीसेक में जैसे है जी उसमें सर, इन्वेस्ट रहता है यस आपका, और उसके थ्रू या फिर प्लेज करके फिर आप अपनी यस ट्रेड करते हैं? यस अच्छा तो इस अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी उसमें डालकर उससे ट्रेड कर सकता हूँ, वो सबसे ज्यादा यस सेफ और बेस्ट रहेगा? यस, सबसे ज्यादा सेफ है, बट अभी आप एक्चुअली गाड़ी छूट गई आपकी। अगर 2 साल पहले किया होता आपने तो लास्ट 2 साल 9-9 10-10% दिया उन्होंने, इक्विटी से भी ज्यादा। ओके। क्योंकि जीसेक का फंडा ये होता है ना कि समझ लीजिए आपने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया, तब जीसेक का कूपन रेट था 7.7-7.8% के आसपास। यस अभी सर। उसके बाद आरबीआई ने ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स रेट कट किया है। ओके। तो आप अगर आप 2023 में खरीदते जीसेक
तो 100 रुपए के जीसेक पे आपको 7 या 7.5 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके। अभी जो जीसेक मार्केट में आरबीआई और गवर्नमेंट इश्यू कर रहे हैं वो 100 रुपए के अगेंस्ट आपको 5.7 या 6% के आसपास मिलता तो सर बेस्ट टाइम कब होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, है। अगर जब मुझे रुपए? जब यस। इंटरेस्ट रेट पीक हो जाता है ना, वो बेस्ट टाइम है। क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटाता है आरबीआई, आपका जो 100 रुपए का बॉन्ड है वो 110 112 वैसे होता है, वो यील्ड को एडजस्ट करने के लिए। ओके। इसलिए वो अच्छा, लास्ट 1-2 साल में 9-10 भी है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेंगे वो तब बेस्ट टाइम रहेगा मुझे यानी जीसेक में इन्वेस्ट करके और फिर उससे ट्रेड करने के नहीं नहीं नहीं, जब इंटरेस्ट पीक पे आ गया हो, वहां से गिरने वाला इंटरेस्ट रेट, तब जीसेक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट एकदम लो है, तब इक्विटी। लिए। यस सर। वो थंब रूल है बेसिकली। ओके। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तब आप इसे यहाँ से उठाकर आप उसे अपने कैपिटल को उसमें डाल देंगे, इक्विटी में डाल इक्विटी में अगर समझ लीजिए, आरबीआई अभी भी बोल रहा है ना कि इन्फ्लेशन कम है, हम लोग रेट कट और करने वाला है और करने वाला है। देंगे। अभी यस सर। 5.1% है रेपो रेट मेरे हिसाब से। अगर रेपो रेट 3.7 या 4% के आसपास आ गया, वो बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि वहां पे एक पक्का इवेंट होगा, करेक्शन वाला इवेंट 15-20% का। अगर वो इंटरेस्ट रेट और इवेंट मिलेगा 15-20% का, वो बेस्ट टाइम होगा डेट से इक्विटी में शिफ्ट होने के लिए। ओ, तब सर आप उस समय आप क्या म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड लेंगे या फिर डायरेक्टली इक्विटी नहीं नहीं, उठाएंगे? इक्विटी म्यूचुअल फंड सर, वो डायरेक्ट का मतलब बहुत दिमाग खराब होता है रिसर्च करने में। ओके। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड या फिर सीधे जीसेक, ईटीएफ। दोनों? हाँ। ओके, ठीक। इस पर भी सर आप थोड़ी वीडियो कुछ बना दीजिएगा ताकि यानी हम इसे देखकर और समझ सके कब यानी। ओके ओके। और वो बहुत ही नहीं सेफ भी हुआ था ना, अगर कल के दिन कंपनी यानी जीरोधा ये भाग गई या कुछ भी हो गया तो कम से कम वो हमारे जीसैक उसमें सेफ हम्म रहेगा, तो प्राइस भी कैश आउट कर सकते हैं हम। यस यस। एक और वो, उसके एंड साथ देन जतिन जी ने भी एक पूछा था कि वो एसेट एलोकेशन कैसे मेंटेन करना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है। यस सर। तो हम लोग में से बहुत कम लोग ही डाइवर्सिफाई करते होंगे। यूजुअली एक स्ट्रक्चर होता है कि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में इक्विटी थोड़ा हायर परसेंट होता है, डेट थोड़ा कम होता है, एंड देन गोल्ड एंड सिल्वर जैसे अदर कमोडिटीज है, रियल एस्टेट, वो सब 20-25% होना चाहिए। तो मेरा एसेट एलोकेशन कैसा होता है कि मैंने आपको जैसे बताया, जब पीक इंटरेस्ट रेट आ गए थे तो मेरा डेट एलोकेशन वॉज क्लोज टू 70%, इक्विटी अबाउट 5-6%, और बाकी गोल्ड, रियल एस्टेट और वो सब। तो जी। अभी जब एक एक 1.5 साल बाद होगा कि इंटरेस्ट रेट्स एकदम लो पे पहुंच जाएंगे, वहां से और कम करना आरबीआई के लिए फिजिबल नहीं है, देन वो 70% जो डेट था, आई विल सिक्वेंशियली इंक्रीज इक्विटी एलोकेशन फ्रॉम 5-6% टू 65-70%। डेट ओके। फिर 5-6% ही रह जाएगा मेरे पास। यूजुअली ओके। मैं वैसा करता हूँ। अगर आप ये वाला एलोकेशन को टाइमली स्विच कर पाए 2 मार्केट साइकिल में, यस सर। तो बहुत कैपिटल बनता है, बहुत ज्यादा कैपिटल बनता ओके है। सर, ये राकेश इस झुंझुनवाला ने जो किया है, वो उन्होंने 4 साइकिल में किया है ये, तभी वो ओके इतने ऊपर पहुंच गए। अभी ये जो विजय केडिया, मधुसूदन केला, ये सब जो नए नए लोग आए हैं, वो लोग 2 साइकिल पकड़े, वो तभी उतने ऊपर पे पहुंच गए। जी सर। और सर इस पे सर आप प्लीज एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे ताकि इसको थोड़ा और सही से समझ सके, अगर हो सकता है सर तो। या थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ सर भैया। कि जब हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं हम्म। तो ओवरनाइट कब लेके जाना है और कब हमें छोड़ देना है? सर अगर आपने एक स्ट्रैटेजी लिया है, जैसे आयरन कॉन्डोर या वर्टिकल स्प्रेड, एक स्ट्रैटेजी लिया हुआ है, एंड आप प्रॉफिट में हो, तो ओवरनाइट लेके चला। आयरन कॉन्डोर और वो सब, अगर आपने बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर लिया है, तो उनको तो आपको ओवरनाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट में डीके सब ओवरनाइट ही हो रहा है। इंट्राडे डीके तो बहुत जी। कम ही होता है। लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पकड़ा है, जैसे वर्टिकल स्प्रेड हो गया, जैसे अभी बरिष्ठा साहब ने किया, या जैसे मैं करता हूँ कि इन द मनी को सेल करके आउट ऑफ द मनी से hedge किया, जी उस टाइम। मैं भी आपकी तरह ही करता हूँ, इन द मनी को सेल करके आउट ऑफ द मनी बाई करता हूँ। हाँ सर, अगर वैसा है तो अनटिल एंड अनलेस मेरे फेवर में अगर 100 या 120 पॉइंट नहीं होता है, मैं नहीं लेके जाता अच्छा, हूँ। चाहे चाहिए कोई भी चाहिए। साइड हो, पी साइड या फिर सी साइड। यस यस और यस पी साइड में होता तो फिर भी 100 पॉइंट या फिर उसके यस अगेंस्ट में कुछ और बाई करके रखना पड़ता है। यस। क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ ओवरनाइट कैरी करने में। मैंने जब भी इनिशियल मैंने जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, जब भी मैं ओवरनाइट कैरी करता था, मेरा हमेशा ऑपोजिट ही खुला है।
तो एंड ऑफ द कल डे में पोजीशंस बहुत कम बनाता हूँ, और अगर 100 से 120 पॉइंट मेरे फेवर में है तभी मैं लेके जाता हूँ, नहीं तो बाय द वे सर, आपने मेरी स्ट्रेटेजी को देखा सर? फिर आपने थोड़ा बैक टेस्टिंग कुछ करके देखा नहीं आपने? सर, नहीं नहीं। ओके सर, कोई नहीं। लास्ट कॉल के बाद तो घर पे पूरा खत्म ही हो गया है। इसलिए मैं आजकल कॉल्स भी नहीं रख पा रहा हूँ रेगुलर। कोई इशू। 5-6 महीने में मैं पूरा नहीं प्रॉपरली जो भी होगा मेरा चार्ट वो पूरा बना कर रख दूंगा, जितने ट्रेड्स लिए, तो फिर यस मैं एक सर, बार आपको सबको बता दूंगा क्या हुआ इसमें। यस ओके सर। वैसे आपको तो स्ट्रेटेजी तो आपको सही लगी होगी, यस यस लॉजिकल है। यस यस। ठीक है, एंड थैंक यू मेरा एक और भी है, अभी मैं ऐसे पोजीशन में हूँ कि मैं नए स्ट्रैटेजीज वो सब टेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरा आरओए थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है, मतलब, सर। और जो मेरा एक्सपेक्टेड रेशियो है उसके हिसाब से आ रहा है आरओए, तो मैं ज्यादा ट्वीक नहीं करता हूँ। ओके सर। बस ये है कि मैं जिस स्टाइल में ट्रेड करता हूँ वैसे ट्रेड करने के लिए स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। यस सर। वो एक ही ड्रॉबैक है, मतलब मैं सिस्टमिक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं डिस्क्रिशनरी हूँ, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा पड़ता है, बट जो आरओए बन रहा है मैं उससे खुश हूँ, तो मैं ज्यादा ट्वीक करता नहीं। ओके सर। हेलो सर सर। हेलो हाय सर। सर। वो आपका डाइवर्जेंस वाला स्ट्रेटजी कैसे काम कर रहा है? वो मैंने बहुत दिनों से फॉलो ही नहीं किया सर, बंद कर दिया उसको। कि वो नहीं काम इंडिकेटर कर मैंने रहा था बंद या कर फिर दिया। कुछ सही नहीं, से आरओआई नहीं आ रहा था? ढंग से आरओए नहीं आ रहा था, मतलब वो 1:3 वाला जो मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिकेटर देता है तो स्टॉप लॉस के 1:3, ये बहुत हाँ सारे हाँ। बड़े बड़े ट्रेड्स छूट गए, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे 1:3 1:4 में क्विट करना था, फिर मैंने वो बंद कर अच्छा, तो नहीं दिया। तो उसमें ये कर सकते हैं ना कि 1 से 3 पे क्विट ना करे, यदि हमें कुछ और भी दिख रहा है बेटर तो कैरी कर लें। ये जैसे ये था ना सर, लास्ट मैंने कभी बंद किया उसको 15 अक्टूबर के बाद, उसको बंद ही कर दिया। तब तक भी तो काफी बराबर ही पकड़े थे, कितने पकड़े, 517 पॉइंट तो दिए ही थे उसने, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से, हम्म वो हम्म इंडिकेटर के हम्म हिसाब से। उस 15 अक्टूबर के बाद मैंने फिर ट्रैक नहीं किया, बंद कर ओके। सर मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको कैसा लगता है? दिया। सर उसी से पैसा बनता है। उस मेरा स्टाइल ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग था, बट क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से कोई डायरेक्शन पकड़ा ही नहीं मार्केट ने, तो ज्यादा पैसे बने नहीं, हल्का हल्का ही बना जी है। सर अगर आपको जो वो बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करते हैं ट्रेडिंग से पैसे, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हाँ। से ही हो सकता है। बाकी ये जो सेलिंग स्ट्रैटेजीज है या फिर सिस्टमिक जो ट्रेडिंग है, उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पैसे। आप वो 20-25% के आसपास रिटर्न लेके जाओगे सालाना, बट अगर कैपिटल मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्शनल या मोमेंटम ही करना पड़ेगा। मेरा तो कैपिटल ही सर बहुत छोटा है। हाँ वही ना सर। अभी तो 3 लाख तक ही पहुंचे हैं। हाँ सर, मेरे केस में फायदा क्या हो गया ना, मैं वो 2021 22 23 ईयर्स में एक्टिव था, जहाँ पे मार्केट बहुत डायरेक्शनल था और बहुत मोमेंटम था, हाँ, तो कैपिटल मेरा फटाफट बड़ा हो गया वहाँ पे। और तब तो अभी मार्जिन भी थोड़ा बहुत अवेलेबल था, अभी तो हाँ मार्जिन इतना एग्जैक्टली, रूल्स टाइट हो गया। एग्जैक्टली, तो मेरा कैपिटल फटाफट बड़ा हो गया। आजकल के मार्केट में अगर आप बोलो मुझे कि 50,000 से भाई तू पहुंच जा अभी जहाँ पे पहुंचा है, इम्पॉसिबल है। 4 साल लग जाएंगे। 4 साल भी कैसे लगेंगे सर, जब तक आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे स्विंग्स नहीं मिलेंगे, ट्रेंड्स नहीं मिलेंगे, हाँ, ये बात चार सही साल है। में भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेना पड़ेगा फिर तो। यस यस। एंड वो ट्रेडिंग थोड़ी होता है, ट्रेडिंग होता ही गेम ये है कि आप रिस्क कैलकुलेट करके लेते हो। हाँ, फिर 1 रुपया में 1 रुपया का ऑप्शन खरीदना पड़ेगा इस होप में कि 100 हाँ चला जाए। हाँ एग्जैक्टली, वो ट्रेडिंग थोड़ी नहीं है सर, वो तो फिर लॉटरी है। आप ये देखिए ना, ये अगर मैं ये एरिया से शायद चालू किया था ट्रेडिंग करना, 10,200 लेवल से 2024 के हाई 25,000, मतलब इंडेक्स 150-200% रिटर्न दे गया, 200 नहीं 250% रिटर्न दे गया, बीच बीच में 10-12% के स्विंग्स तो बहुत सारे। और स्विंग ऐसे नहीं कि 4-5 दिनों में 10% गिर रहा है, वो 2-3 दिनों में गिर जाता था 7-8%। हाँ, तो उस टाइम पे पैसे बनते हैं, लेकिन अभी के मार्केट में वही करना पड़ेगा, 4-5% महीने का, 4-5% महीने का। अभी तो मिनिमम कैपिटल 10 लाख होने से फिर अच्छा होता है। हम्म। फिर भी डिसेंट रिटर्न बन सकता है, लेकिन 1-2 लाख से कुछ नहीं बनेगा। यस। वो खाली सीखने के लिए ठीक है, हाँ लेकिन फिर भी मैंने 2 लाख से 87,000 का प्रॉफिट किया था वो तो इस बढ़िया है महीने। सर।
इसलिए आप देखोगे तो आजकल मेरे जो ट्रेड्स भी है मेरे सब लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्योंकि वो मार्केट में वो वाइब नहीं रहा, वो इम्पल्सिव मूव्स नहीं आते हैं। हाँ, मूव ही और नहीं है तो मार्केट में विक्स और इतना डाउन है। हाँ, और कोई भी मूव आता है वो एसएल हिट करके ही लेके जाता है। दो बड़े मूव मैंने डायरेक्शन में पकड़े थे, बट ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने चैट में भी डाला था। हाँ, तो ऐसा है, मार्केट में डायरेक्शन में बैठना मुश्किल है। देखते हैं अभी कितना टाइम और चलेगा। और सर कल गोल्ड और सिल्वर का क्रैश किस लिए आया था? कोई न्यूज़ है मार्केट में? दो दो फैक्टर्स बोल रहे हैं सर। एक तो जो जेरोम पावल का रिप्लेसमेंट नॉमिनेट किया है ट्रम्प ने, अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है, बस ट्रम्प ने नॉमिनेट किया है। वो बंदा हॉकिश है। हॉकिश मतलब वो रेट कट इतनी आसानी से नहीं करता है। तो मार्केट्स को ये लगा कि क्योंकि वो बंदा आ रहा है, मनी सप्लाई टाइट हो जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट्स थे बुक किया है करके कुछ लोग बोल रहे हैं। एंड दूसरा ये था कि इतना वाइल्ड रनअप के बाद वो जो वहाँ का सीएमई इंडेक्स है, यूएस और यूरोप का जो लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेडिंग इंडेक्स है, उन्होंने मार्जिन्स बढ़ाया। तो लोगों के मार्जिन कॉल आने लगे, एंड देन वो कैस्केडिंग इफेक्ट जैसा काम किया और धनाधन गिरते गया। हाँ, तो मार्जिन कॉल्स जब ट्रिगर होते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं। ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये मार्जिन कॉल ट्रिगर है। सबका पोजीशन लिक्विडेट हो गया। पूरे सारे लिक्विड हो गए, यस। इसलिए अगर आप चार्ट में देखोगे तो वो ऐसे ही बीच बीच में आधे एक घंटा में देख रहा था, वो वाटरफॉल जैसे गिर रहा है। जी सर, ये तो ये इधर देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ बस, मतलब मजाक ये है तो क्या ये? यूएसटी का चार्ट है ना, लेकिन एमसीएक्स ऐसे में मोमेंट का फायदा उठा सकते हैं क्या सर कैसे भी? नहीं वो सर, एमसीएक्स मैंने में तो करना कल पड़ेगा ट्रेड सर। किया था। एमसीएक्स में। मैंने एमसीएक्स में कल ट्रेड किया था, लेकिन वो रुक गया था चार्ट, तो मैंने एग्जिट कर दिया। वो वो आपका रुक ही नहीं जा सर रहा था। पूरे। नहीं नहीं, वो आपका ही नहीं था, वो पूरे इंटरनेशनल इंडेक्सेस में ब्रेक हुआ है, फ्रीज हुआ है, अच्छा, सिस्टम क्रैश हुआ है, वो इतने सारे तो मार्जिन कॉल की वजह से। इसलिए मैंने होल्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत हम्म, बड़ा पैसा बनता, कल 1-2 लाख बन जाता। लेकिन ये मैंने तो 20,000 ही बनाया है। ये अगर दो आप हजार यहाँ पे पॉइंट एंट्री किए होते 96 के आसपास, ये वाला जो ब्रेक किया है, ये वाला लो, तो 96 से किधर तक गया है वो? 73, 23 पॉइंट, नहीं सर, बेसिकली तब तो 30%। 7 बजे हुआ था तब, लेकिन वो तब तक तो वो अटक गया था सर चार्ट एमसीएक्स हम्म, का। मैं देख रहा था हम्म, कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन वो चार्ट में एक गैप था, वो रुक हम्म, गया था। तो इसलिए डर के मारे मैंने और कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर रिवर्स होता है तो फिर बड़ा पैसा लॉस भी हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। सुबह को पैसा बन गया था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बिटकॉइन इंटरेस्टिंग जगह पे है। बिटकॉइन भी सर कल गिरा है। इंटरेस्टिंग जगह पे है, या तो ये भी भयंकर टूटेगा या फिर भयंकर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो एनी अदर क्वेश्चंस? और चलिए स्टॉप, काफी टाइम हो गया आज के लिए तो। यस सर, हो गया सर मेरा तो। हो गया सर। हो गया सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।